Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is measurement of speed using inductive pickup. The practical outcome of today's practical are measurement of speed using inductive pickup. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome that is PSO2. Now next is a contactless electrical tachometer that is the inductive pickup. Okay, so this is the diagram of inductive pickup and this is the animation of a inductive pickup tachometer. Now we see the construction of inductive pickup tachometer. It consists of metallic toothed rotor mounted on the shaft whose speed is to be measured. मतलब इसमें क्या है, एक metallic toothed rotor है माउंटेड ऑन द शाफ्ट, जिसको किस पे माउंट किया है, ऑन द शाफ्ट, जिसका स्पीड क्या करना है, मुझे मेजर करना है. अ मैग्नेटिक पिकअप इज प्लेस नियर अ मेटेलिक टूथेड रोटर एज शोन इन द फिगर. नाउ ये क्या है, मैग्नेटिक पिकअप है जिसको किसके साइड में रखा है या फिर किसके पास में रखा है, नियर द टूथेड रोटर के पास में ये मैग्नेटिक पिकअप को यहाँ पे रखा है. The magnetic pickup consists of a permanent magnet with a coil wound around it. तो magnetic pickup क्या है, it is a permanent magnet और इसके ऊपर में क्या किया है, coil को wound किया है. Okay, so how this magnetic pickup and the rotor will be placed, आप ये animation में दे सकते हो. This is a toothed rotor and this is a magnetic pickup coil and there is a air gap between this toothed rotor and this magnetic pickup coil. Okay, तो आपको ये मैग्नेटिक पिकअप से क्या करना है या फिर इंडक्टिव पिकअप से क्या करना है, यू हैव टू मेजर द स्पीड ऑफ दिस रोटर. नाउ वी सी द वर्किंग ऑफ कॉन्टैक्टलेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर दैट इज द इंडक्टिव पिकअप. तो यहाँ पे देखिए, एट द रोटर रोटेट, रोटर मतलब कौन सा है, ये रोटर अगर रोटेट होगा देन व्हाट हैपेंस, द रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, मतलब इसके बीच में की जो गैप है, मैग्नेटिक पिकअप और इसके बीच में की गैप है, ये क्या होंगी आपकी, चेंज होंगी. दैट्स व्हाई द रिलक्टेंस आल्सो चेंजेस and the toothed rotor changes, hence EMF is induced in the pickup coil. इसी वजह से क्या होगा, some EMF will be induced in the magnetic pickup coil. Why EMF will be induced? Because here is a magnet, मतलब continuously flux line है. जब ये रोटर रोटेट होगा तो ये क्या करेगा, it will cut the magnetic flux line. That's why the magnetic pickup will be generated here or EMF will be induced in this magnetic pickup. The output is in the form of pulses with a variety of waveforms. अभी ये जो यहाँ पे क्या है, एयर गैप कम है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक वेवफॉर्म मिलेगा. इट इज लाइक दैट. ओके, देन अगेन टूथ, देन अगेन गैप, देन अगेन टूथ, देन अगेन गैप. मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा. देन यहाँ पे अगर ये रोटर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ विल बी डाउन, again increase, again down, again increase, again down. So this is called as a pulse generation when this rotor will get rotated, or that is called as a pulse generation. The frequency of pulse generation of induced voltage. अभी ये जो pulse generate हो रहा है of induced voltage, ये किसका pulse generate है, जितना ज्यादा voltage इसमें generate हो रहा है, ये किस पे डिपेंड रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द रोटर. मतलब जितने ज्यादा टीथ रहेंगे, ओके, उतना ही क्या होगा, आपका ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा. देन अगेन कम, अगेन ज्यादा, अगेन कम, अगेन ज्यादा. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेस मिलेगा आपको यहाँ पे. एंड इट स्पीड ऑफ रोटेशन, ओके, और इसके स्पीड पे ही क्या रहेगा, ये डिपेंड रहेगा. Since number of teeth is known, आपको क्या क्या पता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ पता है. The speed of rotation can be determined by measuring the frequency of pulses with an electronic counter. तो यहाँ पे क्या लगा है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है. तो with the help of electronic counter or
CRO, that is the cathode ray oscilloscope, we can measure the frequency of this pulse generation. जो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जनरेट हो रहा है, ये पल्स का फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हो आप, मेजर कर सकते हो. दैट इज द 1 अपॉन टाइम पीरियड. ओके. Then the speed of the shaft is given by following equation, that is n is equal to pulses per second. मतलब एक सेकंड में कितना पल्स जनरेट हो रहा है, divided by number of teeth. Okay, so in this way we can calculate the speed of the shaft with the help of this inductive pickup tachometer. Now advantage, it requires less maintenance, it is easy to calibrate. मतलब इसका मेंटेनेंस क्या है, लो है. व्हाई, बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक पिकअप कॉइल एंड द रोटर. इट इज इजी टू कैलिब्रेट, इसका कैलिब्रेशन क्या है, वेरी इजी है. डिसएडवांटेज, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसका सर्किट क्या है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एप्लीकेशन, स्पीड मेजरमेंट ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट. रोटेटिंग शाफ्ट का स्पीड मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है. नाउ वी सी द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन. जैसे आपको दिख रहा है, दिस इज अ डिस्क, इसका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ टीथ ऑन सेगमेंट, यहाँ पे कितने टोटल टीथ है, 8 है. स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू डायमीटर ऑफ डिस्क अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन द सेगमेंट. सपोज द स्पीड फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स जनरेशन इज अ 4, डायमीटर ऑफ डिस्क इज अ 6, डिवाइड बाय 8, तो ये कितना आ गया, 3 रोटेशन पर सेकंड. मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई रोटर की, 3 रोटेशन पर सेकंड. जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, व्हेन दिस इज अ मूविंग हियर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पल्स विल बी जनरेटेड लाइक दैट. ओके. तो ये फ्रीक्वेंसी जो है पल्स जनरेट होने की, ये कितनी है, 4 है. दैट विल बी मेजर विद द हेल्प ऑफ द CRO, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. ओके. Now number of pulses is equal to क्या होगा, frequency into diameter of disc, that's why 6 into 4 is equal to 24. Okay. So in this way we can calculate the speed with the help of the inductive pickup. जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने. ओके. देन दिस रोटर विल बी रोटेटेड हियर. तो यहाँ पे अभी वोल्टेज ज्यादा है, that's why the pulse will move in the upward direction. ये एनिमेशन से आप क्लियरली देख सकते हो. जैसे यहाँ पे आ रहा है टिप, दिस इज मूव अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, सो दैट यू आर गेटिंग द कंटिन्यूअस पल्स. ओके. तो इसका अगर फ्रीक्वेंसी अगर मुझे मेजर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द CRO. एंड when I am calculating the time period, 1 upon time period, that is the frequency, that is the calculated with the help of the CRO. So you are getting such like a structure on the CRO, and with the help of which we are getting the this frequency. Okay. फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है, नॉब पोजीशन आपको पता है, मैंने अभी यहाँ पे चार पे पोजीशन पे रखा है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है. ओके. तो इन दिस वे we are able to calculate the speed with the help of the inductive pickup without contacting to the rotor. The speed of disc is measured with inductive pickup. Conclusion, the speed of disc is found to be 3 rotation per second, that is 180 rotation per minute. In next practical, we see practical on vibration meter for measuring vibration of machine and structure. Thanks. For any query, contact to this number.